So, I welcome you to the session number 2 of how to speak English fluently by using the US UK methodology. तो आज हम देखने वाले हैं टॉपिक स्पीच क्लब एक्टिविटी नंबर 2, देन रीजंस ऑफ हेजिटेशन, हाउ नेटिव इंग्लिश स्पीकर मैनेज हेजिटेशन, यानी कि यूएस यूके के लोग हेजिटेशन कैसे मैनेज करते हैं, हमारे लिए उससे क्या लर्निंग मिलती है, एंड द ओपन फोरम. सो स्पीच क्लब एक्टिविटी एक हमने कल देखी थी जिसमें हमने देखा था इफ समवन आस्क यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसको आंसर कैसे करना है. ओके, आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? इज देयर एनीवन जिसने कल पार्टिसिपेट नहीं किया इस एक्टिविटी में? सो आई गेस देयर इज अ नेम त्रिशाली. त्रिशाली, डिड यू ट्राई यस्टरडे? आपने कल पार्टिसिपेट किया था इस एक्टिविटी में? No, sir. ओके, वुड यू लाइक टू ट्राई? Ah, ओके. my name is Trishal Tukaram Kadam. ओके. I am standard in 10th class. ओके. My goal is in police. ओके. Mm, my family member is my father's, mother's, my brothers and sisters. Thanks, sir. ओके, थैंक यू त्रिशाली. Now we'll see the speech activity number 2 today, the storytelling through the images. What is the name of the activity? Storytelling through images. इसका मतलब मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, आपको उस इमेज को देख के स्टोरी तो नहीं बट देन एक दो सेंटेंस बनाने हैं. ओके, इवन वन सेंटेंस आल्सो विल डू, नो प्रॉब्लम, बिकॉज स्टार्टिंग में स्पीच कंपोजिशन हमको जल्दी आता नहीं है. इट टेक्स टाइम, बट देन जो एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी बातें करते हैं, दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश, वो ट्राई कर सकते हैं टू टेल द स्टोरी थ्रू द इमेजेस. हियर वी गो. सो व्हाट इज दिस? हु विल टेल मी इन इंग्लिश? कौन बताएगा मुझे? Sir, can you repeat once again? ओके, आई रिपीट. नाउ टुडेज एक्टिविटी इज स्टोरी टेलिंग थ्रू इमेजेस. इसका मतलब मैं आपको इमेज दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, और उस इमेज को देख के आपको उस इमेज के बारे में बोलना है. किसमें? अंग्रेजी में. समझ में आ गया? Yes. Yes. ओके, हियर वी गो. कौन बताएगा? ओके, यस. Hello, एनीवन? sir. यस. Yes, in sir, in the image, the children is crying. ओके, गुड, दैट्स गुड. सो even single sentences also will do, no problem. So you can say this children, this small kid is crying, probably he's trying to reach the mother. Maybe he's asking for the toys, okay, or the chocolates, whatever may be the reason, but then the fact is he is crying. Okay, next. Anyone please try? ओके गाइज, पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप बात कर सकते हो. Sir, the image is showing achievement ladder. The करेक्ट. ladder is going through the achievement. Right. So maybe we can say that the books are nothing but the ladder for the success. They help us as a ladder to reach the goal.
यस, अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी के लोग भी बोल सकते हो। बुक्स को देख के आपको क्या लग रहा है? Okay, next image. This one. So I'll take the name of the people. Okay, the Mahin can speak. Then Yes, sir. Season. Yes. Sir, actually in this image, it's showing the official image. In this, the persons are like gathering for the meeting or the group discussion to some topic related to official work or any other topic. That's correct. So over here the chart is showing that something it's related to office. Okay, the laptop is there. Probably it's office meeting, office gathering. That's correct. Okay, this image, we'll speak about this image. कौन बात करेगा? So in the image, people are celebrating Indian festival, Holi. That's correct. What is the name of the festival? Holi, Ranga Holi. Panchami. That's correct. This one? Yes. Who'll speak? Sir, in the image, the dog is which is from the husky breed. It is gazing the stars or anything, looking upward. Right. Any other people would like to try? Okay, well. This one? Any one sentence regarding the line? Come on, guys. So you just need to watch the image और उसके बारे में कुछ तो अंग्रेजी में बोलना है. So the image is showing the picture of lion, which is and he is the king of the jungle. That's correct. Okay, thank you, Abrar, for participating in this activity. Okay, मैं बाकी लोगों को भी बोलूँगा कि आप भी गाइस पार्टिसिपेट करो. सो इससे क्या होगा, आपकी सोचने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी अंग्रेजी में. आप यू विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट द थिंग्स एंड देन धीरे धीरे आप अपना स्पीच कंपोज करना स्टार्ट करोगे. अभी आपको एक ही सेंटेंस बनाना है. इज इट टू डिफिकल्ट? एक सेंटेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट है? टेल मी. No. नो, राइट. और मैंने पहले आपको बोला है द स्पीकिंग प्रोसेस गोस through the two activities or the two process. One is a theory, another one is a practice. तो आपको theory का knowledge होना जरूरी है. That is, you must have a guidance, right? So like what is US UK methodology, what is a spoken English methodology, what is a speech production features,
ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि हम थ्योरी में कवर करेंगे, एंड देन प्रैक्टिस में यू विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इनटू द प्रैक्टिस। जो आप सीखेंगे वो प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, व्हाट इज दिस? Sir, the image is showing the day-to-day traffic of the cities. That's correct. The people might be stuck in the traffic. So it's representing the traffic at metro city level, because in tier 3, tier 2 city, we do not witness such type of a huge traffic. Am I right? Yes, sir. Okay. So here we go. Now tomorrow, what we'll do, we'll take up the topic, speak on any topic for a minute. कोई भी एक टॉपिक आप चूज करोगे, ओके, और उसके बारे में आप 1 मिनट बात करोगे। तो यू हैव फुल 24 आवर्स। 24 आवर्स में कोई भी एक टॉपिक चूज कर लो, एंड देन उसके कुछ पॉइंट्स बनाओ, 1 2 3 4 5। उस पॉइंट को एज अ रेफरेंस मान के फिर आप 1 मिनट का स्पीच बनाओ। देन यू स्टैंड अपोजिट टू मिरर, मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, थोड़ी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देन कल आप जब ज्वाइन करोगे देन यू विल स्पीक ऑन द सेम टॉपिक ऑफ योर चॉइस। जो आपने टॉपिक चूज किया है उसके बारे में आप बात करोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थ्योरी पार्ट। नाउ यस्टरडे हम देख रहे थे देर आर 4 रीजन्स ऑफ हेजिटेशन, राइट? तो उसमें से आज हम देखेंगे व्हाट इज द फर्स्ट रीजन फॉर हेजिटेशन। Now here on your screen, the first reason for hesitation is native hesitation. Okay, what does this mean? इसका मतलब क्या है वो आगे देखेंगे हम। Now native hesitation is faced by non-native speakers and native speakers both. What is the meaning of native speaker and non-native speaker? Native speaker means person whose first language is English, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पहली लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी है। तो किन लोगों की पहली लैंग्वेज अंग्रेजी रहती है, आपको पता है? Foreigners. Foreigners, right? So foreigners, that is US UK people, they are native English speaker, and contrary to this non-native English speaker, यानी कि ऐसे लोग जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं है, यानी कि वी इंडियन पीपल, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव स्पीकर एंड नॉन नेटिव स्पीकर। तो नेटिव हेजिटेशन का जो प्रॉब्लम है दोनों को फेस करना पड़ता है। नॉन नेटिव स्पीकर्स दैट इज वी पीपल, और नेटिव स्पीकर दैट इज यूएस यूके पीपल। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू in the subsequent slide. Now native hesitation is caused by the 6 problems. Native hesitation होने के टोटल 6 प्रॉब्लम्स के कारण नेटिव हेजिटेशन होता है। टुडे विल सी द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट कॉजेज द नेटिव हेजिटेशन। नाउ हमने डीप डाउन थोड़ा रिसर्च किया तो हमको पता चला, बिफोर दैट विल सी द व्हाट इज द प्रॉब्लम। So the speaker has a particular thought idea in his mind. Okay, स्पीकर के माइंड में कोई थॉट है, आइडिया है, बट राइट वर्ड और फ्रेज टू एक्सप्रेस थॉट आइडिया मे नॉट अकर टू हिम रेडिली। पर उस आइडिया को या थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड चाहिए या फिर जो फ्रेज चाहिए वो तुरंत याद नहीं आ रही है। उसको पता है क्या है, वर्ड क्या यूज करना है उसको पता है, दैट इज ऑन हिज टिप ऑफ द टंग, राइट? बट देन उसको याद नहीं आ रहा है, यानी कि उसके स्पीच में वो वर्ड नहीं आ रहा है। तो गाइज ये होता है हमारे साथ। यस, डज दिस हैपन विद अस, Yes, sir. राइट? सो ये होता है, इवन दो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है तो भी ये प्रॉब्लम आता है, और ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो है उनको भी ये फेस करना पड़ता है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो इसका हमने रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो इसका रूट कॉज हमको मिला स्पीकिंग प्रोसेस में। सो द फर्स्ट थिंग इज स्पीकिंग इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स कैसे, हम तो इजीली बात कर लेते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू।
जब हम बात करते हैं हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टॉपिक, कौन से टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो चूज करना पड़ता है। देन कंटेंट ऑफ स्पीच, यानी कि उस टॉपिक का कंटेंट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज मुझे बात करनी है कम्युनिकेशन के बारे में, बट देन कम्युनिकेशन में कौन सा कंटेंट मुझे चूज करना है, दैट आई नीड टू डिसाइड। आफ्टर दैट जो कंटेंट में कौन से वर्ड यूज करने हैं, कौन से फ्रेजेस यूज करने हैं, वो मुझे डिसाइड करना पड़ता है। After that, I need to make the grammatical arrangement of words and phrases in the speech. Okay. Along with this, I also need to take care of the listener's point of view. यानी कि listeners मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये भी मुझे समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये कोर्स अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी चल रहा होगा तो प्रोबेबिलिटी है वहाँ के सारे लोगों को अंग्रेजी पता है। सो आई माइट बी स्पीकिंग इन कम्प्लीटली इंग्लिश ओनली, सिर्फ मैं अंग्रेजी में बात करता। बट देन ये जो कोर्स चल रहा है Tier 2 एंड Tier 3 सिटी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। सो मुझे जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो है हिंदी। तो जब मैं बात करूँगा आई नीड टू टेक केयर ऑफ द लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एंड द लास्ट वन, आई नीड टू टेक केयर ऑफ द वेदर लिसनर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड कंटेंट। मुझे ये देखना पड़ता है कि लिसनर्स को कंटेंट समझ में आता है या नहीं। ओके। सो ऑल इन ऑल वाइल स्पीकिंग आई नीड टू टेक केयर ऑफ द मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। बात करते टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल साथ में रखना पड़ता है। सो जस्ट अ मोमेंट, प्रियंका इज ट्राइंग टू join, but then I don't know what the problems is facing. So guys, if you have a link, you can share with the Priyanka. Well, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमको एक से ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई स्पीकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अंडरस्टूड गाइज? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? No. And because of this, such type of problem does occur. Okay. Now, native English speaker, how they deal with this such type of problem that causes the native hesitation? Now, the first thing मैं बोलना चाहूँगा, पिछले 15-20 साल में इन लोगों के साथ जब मैं काम करता था, काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करता हूँ। ओके। तो जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ मैं देखता हूँ कि किस तरीके से ये लोग इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी कुछ मेजर्स देखेंगे ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं टू डील विद द नेटिव हेजिटेशन। नाउ द फर्स्ट थिंग, जब भी इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है नेटिव हेजिटेशन का, द फर्स्ट थिंग दे डू, they adopt a particular mindset. Okay. Now as far as the mindset is concerned, जब भी हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, this is what happen with us, ये हमारे साथ होता है, we become nervous. Do you agree with this? जब भी कोई नॉन नेटिव स्पीकर, जिसको अंग्रेजी में बात करना नहीं आता है, जब बात करने की कोशिश करता है तो उसको जब वर्ड याद नहीं आते हैं तो दैट पर्सन बिकम नर्वस। बट देन these people never ever become nervous whenever they face the hesitation problem. So Abrar says yes. Okay, thank you for the response. Okay. Now जो मेरी स्टैंडिंग है, आई एम गोइंग टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो से हम देखेंगे कि वेदर दीज पीपल फेस द हेजिटेशन प्रॉब्लम और नॉट। ओके। You see Harry Potter, Totally. isn't it? Yeah, I feel like it unlocks for people something from their child. ओके गाइज, आपको वीडियो दिख रहा है? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके गुड। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक रिपोर्टर है और एक है, सो वी गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम अबरार, थैंक यू। एक है एक्ट्रेस, द नेम ऑफ द एक्ट्रेस इज इमा वाटसन। ओके।
तो इनके बीच में इंटरव्यू चल रहा है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो एक्ट्रेस है बात करते टाइम उसको हेजिटेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ओके, तो आपका काम है क्लोजली ऑब्जर्व करना और ये देखना सच में उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या। ओके, आ रहा है तो वो कैसी डील कर रही है, वन थिंग। सेकंड थिंग, ये वो नर्वस होती है क्या बात करते टाइम, ये आपको देखना है। ओके, हियर वी गो। Potter, Totally. isn't it? Yeah, I feel like it unlocks for people something from their childhood, something that feels so deep inside them, and like something that they've always known. It has a level of familiarity that is just so intense and special. When I talk about prep and whatever else, it was like in the build up to the movie, I really felt the pressure of that, not just from me loving those films, but knowing how much this character means to so many people. What was it you ओके गाइस, ऑब्जर्व किया आपने? एनीवन वांटेड टू शेयर द ऑब्जर्वेशन? आपको ऑब्जर्वेशन अगर कुछ फाइंड आउट हुआ है तो कोई शेयर करना चाहेगा? विल रिपीट वन मोर टाइम। ओके, आपको क्या करना है, मोमेंट टू मोमेंट चेक करना है, नॉट सेकंड टू सेकंड। एवरी मोमेंट में क्या होता है वो आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। हियर वी गो। Marvel, DC, Harry Potter, Totally. isn't it? Yeah, I feel like it unlocks for people something from their childhood, something that feels so deep inside them, and like something that they've always known. It has a level of familiarity that is just so intense and special. When I talk about prep and whatever else, it was like in the build up to the movie, I really felt the pressure of that, not just from me loving those films, but knowing how much this character means to so many people. What ओके, अभी कुछ समझ में आ गया? यस। Yes. ओके, सो व्हाट इज योर फाइंडिंग? Before speak, she is thinking, I guess, the she's not getting proper word. यस, यू आर Means करेक्ट। she, तो बेसिकली इससे फेसिंग द हेजिटेशन, हेजिटेशन फेस कर रही थी वो बात yes, करते टाइम। yes. यस, राइट। बट देन बाकी लोगों को वो नज़र में क्यों नहीं आया, वो सिर्फ आपको क्यों नज़र में आ गया? बाकियों को भी नजर में आया है, but maybe they are scared to speak. ओके, सो द थिंग इज, वो जो हेजिटेशन उसको आया था, फेस करना पड़ा, वो कुछ मोमेंट के लिए था। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके गाइस, फॉर एवरीवन। सो द फर्स्ट थिंग इज सी वाज फेसिंग हेजिटेशन, उसको हेजिटेशन फेस करना पड़ रहा था। बट देन यहाँ पे उसका जो हेजिटेशन है वो कुछ मोमेंट के लिए था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, शी मैनेज दैट हेजिटेशन। नाउ विल सी थ्री प्रोमिनेंट पॉइंट वेयर सी फेस द हेजिटेशन। हम एक 3 पॉइंट देखेंगे जहाँ पे उसको हेजिटेशन फेस करना पड़ा, उसको थोड़ा सा हम डायसेक्ट करेंगे। ओके, हियर वी गो। Marvel, DC, Harry Potter, Totally. isn't it? Yeah, I feel like it unlocks for people ओके, इस पॉइंट के बाद आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे उसको something from their हेजिटेशन फेस करना पड़ा है। ओके, ऑब्जर्व केयरफुली। childhood, something that feels so deep. राइट, समझ यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? Yes. Yes, sir. Or something from their ओके, आफ्टर दिस पॉइंट। childhood, something that feels so deep. राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो उसका जो रेट ऑफ स्पीच है, यानी कि बात करने का जो स्पीड है, ओके, जो कांस्टेंट होना चाहिए था गिर गया था, यानी कि स्लो हो गया था। डिड यू ऑब्जर्व दिस थिंग? यस, नो? Yes, sir. सेकंड थिंग, Yes, देखो sir. स्क्रीन पे देखो, उसने रिपीट वर्ड यूज किए हैं।
ओके, थैंक्स फॉर अब्रार फॉर द रिस्पॉन्स। और रिपीट वर्ड यूज किए हैं, देख पा रहे हो आप? सो ओके, नाउ विल चेक द अनदर पॉइंट। inside them and like something that they've always known. It has a level of familiarity. अभी इस पॉइंट के बाद आप देखोगे उसको फिर से हेजिटेशन फेस करना पड़ा है, बट देन ब्यूटी ऑफ हर इज वो हेजिटेशन कुछ मोमेंट के लिए ही था, बिकॉज उसने वो हेजिटेशन मैनेज किया है। कैसे मैनेज किया है वो आप आगे देखेंगे हम। That is just so intense and special. डिड यू ऑब्जर्व ओवर हियर? लेट्स चेक वन मोर टाइम। When I talk about that is just so, something that they've always known. It has a level of तो इस पॉइंट के बाद आप अच्छे से देखो, मोमेंट टू मोमेंट देखो क्या हो रहा है उसके साथ। familiarity that is just so कैन यू सी? उसका स्पीच ऑफ रेट फिर से डाउन हो गया और वो कुछ तो सोच रही है, पर उसको इतना सोचने के बाद भी वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। सो यू कैन ऑब्जर्व द फेस। known. It has a level of familiarity that is just so अभी देख पा रहे हो वो सोच रही है कुछ तो भी? यस, Yes, sir. राइट। Yes. ओके, थैंक यू अबरार। तो यहाँ पे उसको एक्चुअली वर्ड याद नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई शी इज ट्राइंग टू रिकॉल दैट वर्ड। उसको याद करने की कोशिश कर रही है, उसके कारण उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये जो टाइम है नॉट अ मोर देन 1-2 सेकंड, कुछ मोमेंट का है। क्यों? क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसने फाइंड आउट कर लिया है कौन सा वर्ड यूज करना है, या फिर उसने कुछ अलग वर्ड जिसको सिनोनिम बोलेंगे वो उसने याद कर लिया है। एंड देन सी कंटिन्यूड हर स्पीच, और उसके बाद उसने अपना स्पीच कंटिन्यू किया है। ओके intense and special. When I talk about prep and whatever else, it was like in the build up to the movie, I really felt the pressure of that, not just तो यहाँ पे देखेंगे हम। from me loving those films, but knowing how much this ओके, इस पॉइंट के बाद आप ऑब्जर्व करो केयरफुली, उसको फिर से हेजिटेशन फेस करना पड़ा है। character means to so many people. देख पा रहे हो यहाँ पे उसको फिर से हेजिटेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। उसके फ्रॉम हर माउथ एक नॉइज निकल के आया है। कौन सा नॉइज है वो? कौन बताएगा मुझे? फिर से देखते हैं, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। Knowing how much this character means to डिड यू चेक इट? ओके गाइज, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज वेलकम। ओके, आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये जो सारे सेशंस रहने वाले हैं दोज आर वेरी वेरी इंटरएक्टिव। ओके, यहाँ पे मैं अकेला सिर्फ बात नहीं करने वाला हूँ। ओके, सो Abrar says yes sir. Okay, and the word she sorry, the noise she created, that noise is can you see over here? so me loving those films, but knowing how much this character means राइट, दिस नॉइज सी क्रिएटेड। तो यहाँ भी उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका स्पीच थोड़ा सा उसका रेट ऑफ स्पीच थोड़ा डाउन हो गया था। उसको वर्ड याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वो नॉइज यूज किया। ओके, उसके मुंह में से नॉइज निकला। दैट इज व्हाट इज दैट नॉइज? समथिंग। ओके, सो इससे ये चीज़ पता चलती है कि इन लोगों को भी हेजिटेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो हाउ मेनी पीपल अग्री विद दिस? Yes. ओके, नाउ इन जस्ट ये जो स्पीच था ये सिर्फ थैंक यू मानसी, सॉरी महीन, ये स्पीच जस्ट 20 सेकंड का था। ओके, 20 टू हार्डली 30 सेकंड। इसका मतलब जस्ट 20 से 30 सेकंड में इस एक्ट्रेस को अराउंड 5 to 6 बार हेजिटेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ओके, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप पूरा इंटरव्यू देखो एवरी टाइम। ओके, एवरी हियर एंड देयर you will see that she is facing the hesitation because this is the impromptu speech। ये जो स्पीच है उसने घर पे तैयार करके रेडी करके यहाँ पे बोला नहीं है। ओके,
तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और हमको भी ऐसे ही स्पीच लर्न करना है, इसी तरीके से बात करना हमको लर्न करना है। तो हमको ये देखना पड़ेगा ये लोग क्या करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, उसको हेजिटेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, फिर भी उसका जो स्पीच है वो स्टॉप नहीं हुआ है। समहाउ शी मैनेज टू कंटिन्यूड हर स्पीच, उसने अपना स्पीच क्या किया है, कंटिन्यू किया है। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ गाइज, यहाँ पे उसको हेजिटेशन का प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ा, दैट इज अ ट्रू, बट देन वो किसी भी पॉइंट पे नर्वस थी क्या? No, sir. नो, राइट? सो विल गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन नाउ। सो द फर्स्ट थिंग, जब भी इन लोगों को हेजिटेशन फेस करना पड़ता है, द फर्स्ट थिंग हैपन्स, दे नेवर एवर बिकम नर्वस। ओके, दे अडॉप्ट अ पर्टिकुलर माइंडसेट, एक पर्टिकुलर माइंडसेट वो अडॉप्ट करते हैं, जिसके तहत वो नर्वस कभी नहीं होते हैं। वेल, नाउ इसके अलावा वो क्या करते हैं, चलो आप बोलोगे ओके सर, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कभी नर्वस नहीं होंगे। ओके, दैट्स फाइन, बट देन आगे क्या? नर्वसनेस अवॉइड करने के बाद भी हम हेजिटेशन को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? ओके, सो विल सी द अदर थिंग्स, वो क्या करते हो देखेंगे अभी। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, these native English speakers use a conventional tools and techniques to deal with such problem. Okay, ये जो प्रॉब्लम आते हैं इनको डील करने के लिए ये लोग कन्वेंशनल टूल्स एंड टेक्निक यूज करते हैं। जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, नाउ ये जो कन्वेंशनल टूल्स एंड टेक्निक है, इन्होंने लर्न किए हैं उनके पेरेंट्स से, और पेरेंट्स ने लर्न किए हैं उनके फोर फादर से। सो बेसिकली all these conventional tools and technique they learn from their ancestors. Okay, तो इसके बारे में अगर जब हमने इनको पूछा एक्चुअली आप कौन से कन्वेंशनल टूल्स एंड टेक्निक यूज करते हो, तो उनको खुद को भी उसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूंगा आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो, तो कौन से टूल्स टेक्निक आप यूज करते हो, आप बता पाओगे? यस, अगर कोई मराठी में बात करता है, अगर उनको मैं पूछूंगा इतनी अच्छी मराठी आप कैसे बोल लेते हो, क्या यूज करते हो आप, कौन से टूल्स एंड टेक्निक यूज करते हो, तो बोल पाओगे, बता पाओगे? यस, सो वी गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम अब्रार, थैंक यू। ओके, तो हम नहीं बता पाएंगे, राइट? द सेम थिंग इज विद दिस पीपल, इनको भी पता नहीं कि वो एक्चुअली क्या यूज करते हैं। ओके, बट देन these conventional tools and technique उनको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं, but then the one thing is these conventional tools and technique they derived from the spoken English methodology। spoken English methodology में से ये tools and technique उन्होंने learn किए हैं, derived किए हैं। ओके, नाउ हमारे यहाँ भी कुछ लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं, नॉट दैट मच फ्लुएंट लाइक दोज यूएस यूके पीपल, बट देन थोड़ी बहुत बोल पाते हैं। ओके, नाउ मैं उनकी बात नहीं कर कर रहा हूँ जिन्होंने सच में खुद में इन्वेस्ट करके अच्छे से अंग्रेजी बोलना लर्न किया है। मैं मेजॉरिटी पीपल की बात कर रहा हूँ जो कि स्ट्रगल करते हैं बात करने के लिए। ओके, इतनी अच्छी से बात नहीं कर पाते, फिर भी थोड़ी बहुत कर पाते हैं। तो ये लोग कैसे बात कर लेते हैं, यानी कि क्या यूज़ करते हैं, कौन सी मेथड यूज़ करते हैं और बात कर पाते हैं थोड़ी बहुत? यस, एनी आइडिया? सम पीपल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, कुछ लोग अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, दे आर नॉट सो फ्लुएंट, बट देन थोड़ी बहुत वो बात कर लेते हैं। तो वो किस चीज़ की हेल्प लेके बात करते हैं? कम ऑन गाइस, स्पीक अप। Sir, actually, for if some people are like spoken English in using the reading English books and watching the movies or any other listening in दैट्स school करेक्ट, area and other. दैट्स करेक्ट महीन। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे
So reading is the one thing. They use a written English methodology to produce spoken English. तो ये क्या करते हैं, जो हमने रिटर्न इंग्लिश मेथोडोलॉजी लर्न की है उसको यूज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्पोकन इंग्लिश प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, हम सबको रिटर्न इंग्लिश मेथोडोलॉजी पता है? यस, नो? हम लिख पाते हैं अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, आप लोग अभी पीजी कर रहे हो, बहुत सारे लोग, राइट? इसका मतलब यूजी हुआ है, हम ग्रेजुएट है मोस्टली, तो हमने पेपर दिए हैं, पेपर हमने अंग्रेजी में लिखे हैं, राइट? तो इसका मतलब हम पास हुए हैं, इसका मतलब हम अंग्रेजी में अच्छे से लिख पाते हैं, राइट? Yes, sir. सो वी नो द रिटर्न इंग्लिश मेथोडोलॉजी। ओके, तो हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वी यूज द सेम मेथोडोलॉजी टू प्रोड्यूस स्पोकन इंग्लिश। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वी cannot use a written English methodology to produce spoken English. Why? A spoken English methodology is a different and written English methodology is a different. Now there is a subtle difference between these two speaking and the writing process. Okay. Now what is the difference? We'll quickly see. Now first difference is a time constraint. जब आप लिखते हो आपके पास कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम होता है सोचने के लिए क्या लिखना है, बट देन जब आप बात करते हो तो बात करते टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि जितना कि हम लिखते टाइम यूज करते हैं। इज दिस ट्रू? True. राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस Yes, है sir. राइटिंग में और स्पीकिंग में। सेकंड बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं एडिटिंग पॉसिबिलिटी। जब हम लिखते हैं, ओके, लेट्स से हम कोई मेल लिख रहे हैं, ओके, कंप्यूटर के ऊपर, तो उस मेल में हम वर्ड को चेंज कर सकते हैं, वर्ड को बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं, दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं, हम सेंटेंस का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, हम सेंटेंस का ग्रामर चेंज कर सकते हैं फिर से। इज दिस पॉसिबल वाइल स्पीकिंग? ये हम जब बात करते हैं हम ये सारी एडिटिंग कर पाते हैं बात करते टाइम? No, sir. नो, राइट? No, sir. So this is the second basic difference between the writing and the speaking. Third one is the content of writing, and this is very very important. Okay, now जब हम लिखते हैं we use a complex sentence, we use a compound sentence. और कौन से sentence use करते हैं हम? Yes. लिखते टाइम हम कौन से सेंटेंस यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स हो गए, कंपाउंड हो गए, और बताओ। आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन। Come on, guys, quickly. जब हम लिखते हैं तो कौन से टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं? तो मैंने आपको दो बताइए है, एक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा कौन सा टाइप का सेंटेंस हम यूज करते हैं? Simple sentence. दैट्स करेक्ट, सिंपल सेंटेंसेस। इजंट दिस इजी? ओके, चलो अभी विल सी द कंटेंट ऑफ स्पीकिंग। चलो कौन बताएगा एक कंपोनेंट क्या है कंटेंट ऑफ स्पीकिंग का, क्या यूज करते हैं हम? एनीवन? Sentence. guys, okay, we got the response from interview speaking, public speaking. Okay, okay. हम थोड़ा बेसिक में जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हैं क्या नहीं? Yes, sir. 50% पोर्शन Yes, जो sir. हमारा स्पीच में हम यूज करते हैं वो होता है सिंपल सेंटेंस। ये मैं बात कर रहा हूँ जो फ्लुएंट कम्युनिकेशन करते हैं उन लोगों की।
जो फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते उनका कंटेंट थोड़ा अलग रहता है। ओके, विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। बट देन जो फ्लुएंटली बात करते हैं उनके स्पीच में 50% अराउंड, ओके, अप्रोक्सीमेटली 50% पोर्शन होता है सिंपल सेंटेंस का। ओके, ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा हमको वेरी फ्यू पोर्शन, जो वेरी फ्यू परसेंटेज यूज करने पड़ते हैं कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। बट देन इनका जो परसेंटेज है हमारे स्पीकिंग में बहुत बहुत कम रहता है, अराउंड 5% टू 10%। ओके, फिर भी हमारे पास 40 to 50% बचा है, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली बाकी का 50% क्या हो सकता है? थोड़ा सा ब्रेन को स्क्रैच करो और मुझे बताओ। यस, नहीं याद आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? Okay, no idea. The Jyoti says no idea. Other people? No idea, sir. Okay. So the very critical element, and that element is your speech composition features. तो आपका जो कंटेंट है स्पीकिंग का, उसमें 50% पोर्शन रहता है अराउंड, ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो ये थोड़ा चेंज हो सकता है, लाइक 40-50% सिंपल सेंटेंसेस, 5-10% कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, एंड वेरी बिग पोर्शन लाइक 40-50% स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर्स। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, व्हाट इज द स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर्स? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर्स? यस, चलो इसके वर्ड में ही उसका मीनिंग है, आपको मैंने हिंट दे दी। स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर्स। स्पीच मेकिंग मतलब बोलने से पहले जो सेंटेंस हम बनाते हैं maybe उस तरीके का कुछ। राइट, स्पीच मेकिंग इज द करेक्ट वन। ओके। ओके, सो इसका मतलब है ऐसे फीचर्स जो आपको आपका स्पीच कंपोज करने में हेल्प करते हैं। ओके, आई रिपीट इट, व्हाट इज द स्पीच कंपोजिशन फीचर्स? ऐसे फीचर्स जो आपको आपका स्पीच कंपोज करने में मदद करते हैं। गाइस समझ में आ गया? शिवम आप म्यूट करोगे, आपका यस। जो साउंड है वो म्यूट करोगे? ओके, यस। सो गाइस डेफिनेशन समझ में आ गई, व्हाट इज द स्पीच कंपोजिशन फीचर्स? दीज आर द फीचर्स व्हिच हेल्प यू टू कंपोज योर स्पीच, राइट? So Mahin says to create or generate text यस सर। input like AI voice. Okay, चलो हम AI में चले गए अभी। Okay, so these are the features which help you to compose your speech, and not only to compose your speech, these are the actually features help the speaker to deal with hesitation. इन्हीं features के कारण US UK people डील करते हैं उनके हेजिटेशन को, एंड these are the features actually help you to keep the flow of your speech. Now the thing is, these features, the information about these features not available on Google, YouTube, okay, and these speech composition features are the part of one of the part of your spoken English methodology. Okay, now we saw this is the difference between the content of writing and content of speaking. Okay, तो मेजरली अगर अगर आप देखोगे, हम सबको सिंपल सेंटेंस बनाने आते हैं, राइट? एम आई ट्रू? सबको आते हैं सिंपल सेंटेंस बनाना, Yes, sir. राइट? Yes, फिर sir. फिर हम बात क्यों नहीं कर पाते हैं फ्लुएंटली, कंफर्टेबली बात क्यों नहीं कर पाते हैं?
just like those people? Why do we feel stressed while speaking? Maybe hesitation, sir. So maybe hesitation, that's correct. And the second thing is we are not good at managing hesitation. And why? Because hesitation को मैनेज करने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज योर स्पीच कंपोजिशन फीचर्स, उनको कैसे यूज करना है ये हमको पता नहीं है. ओके, गॉट इट. Got it, sir. ओके, अगर हमको समझ में आ गया कि हाउ टू यूज द स्पीच कंपोजिशन फीचर्स इन द स्पीच सो दैट वी कैन कंपोज द स्पीच, देन ऑटोमेटिकली योर हाफ ऑफ द वर्क इज डन. ओके, मैंने क्यों बोला हाफ ऑफ द वर्क? क्योंकि ऑलरेडी आप लोग अंग्रेजी में बात करते हो. ओनली द थिंग इज जो कंफर्ट, जो फ्लुएंसी जो आनी चाहिए, ओके, वो नहीं है. एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वी डोंट नो हाउ टू यूज द स्पीच कंपोजिशन फीचर्स. ओके, नाउ वंस वी लर्न, let me admit the person, once we learn how to use the speech composition features and once we implement these features in our speech, then automatically you will be able to speak fluent English with your comfort. Now, because of this basic difference between the spoken English methodology and the written English methodology, we cannot use the written English methodology to produce the spoken English. Okay, now we'll come to the point. Here is the first reason for hesitation. What is that? Native hesitation. Okay. And what is the solution to deal with the native hesitation? So there are three solutions. Number one, adopt a native English speaker mindset. Okay. That is not to become the nervous while speaking English. Second, implement tools and technique a native English speaker uses while dealing with hesitation. Now, what are the tools and technique? Don't worry, we have all these tools and technique, and we are going to teach all these tools and technique. And we are also going to practice how to implement these tools and technique. And the solution number three, learn and apply a spoken English methodology. Now, ये जो spoken English methodology में इसके अंदर how to use the speech composition features ये भी है. So I am going to give you all the speech composition features, how to implement these features and take help of those features to compose your speech. अगर ये तीन चीजें आप करोगे, the reason number one, you will be manage it. Okay, any confusion, doubt so far? No, sir. Okay, good. So over here we learn what is the reason number one and its solution. Similarly, in subsequent sessions हम learn करेंगे what is the reason number two and its solution, what is the reason number three and its solution, what is the reason number four and its solution. Okay, और इसमें अगर आप देखोगे कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि vocabulary नहीं है इसके कारण हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमको ग्रामर नहीं आता इसके कारण हम बोल नहीं पा रहे हैं, वो रीजंस है ही नहीं. ओके, so this is the end of the session, guys. So tomorrow we are going to see the second reason for hesitation. And I told you हम प्रैक्टिस में क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं. आप लोग एक टॉपिक चूज करने वाले हो एंड उस टॉपिक के ऊपर आप एक 30 सेकंड टू 1 मिनट बात करने वाले हो. ओके, द टॉपिक वुड बी ऑफ योर चॉइस. ओके गाइज, वी नीड योर फीडबैक नाउ. सेशन खत्म होने के बाद व्हाट्सएप में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो फीडबैक है इस सेशन के बारे में वो आपको शेयर करना है. मैं आपको दिखाता हूँ. आप देख पा रहे हो, स्क्रीन को देख पा रहे हो यहाँ पे? यस, Yes, sir. जस्ट अ मोमेंट. No, sir. ओके, कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आई गेस कुछ तो गल. जस्ट अ मोमेंट.
सो यहाँ पे आप स्टार्ट सर्वे के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम कम्युनिकेशन हम लर्न कर रहे हैं। मोस्टली बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए होता है मल्टीनेशनल कंपनीज में। सो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मोस्टली वी पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर द कम्युनिकेशन स्किल। एंड सेकेंडली अदर रीजंस भी है, जैसे कि प्रमोशन चाहिए, यूएस यूके जाना है, ओके वो भी रीजंस है। किसी को बिजनेस में डील करना है ऑनशोर लोगों के साथ, ओके। सो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है, व्हेन आर यू लुकिंग फॉर द इंटरव्यू कॉल। तो अगर आपको इमीडिएटली जॉब चाहिए तो आप दिस मंथ क्लिक करो। आफ्टर 3 मंथ्स ये भी चूज कर सकते हो, या फिर आफ्टर 6 मंथ्स अगर आपको नहीं चाहिए जॉब, या फिर आई एम लुकिंग टू स्टार्ट माई बिजनेस, देन कंटिन्यू, पुट योर ईमेल ओवर हियर, देन द वर्कशॉप रेलेवेंट टू योर नीड्स। वॉज दिस वर्कशॉप रेलेवेंट टू योर नीड्स। आपको क्वेश्चन का आंसर करना है येस नो। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, वर्कशॉप के बारे में, इस सेशन के बारे में, उसको आपको जस्ट यस नो में आंसर करना है। दैट्स इट गाइस। जिन्होंने ऑलरेडी आंसर किए हैं उनको आंसर करने की जरूरत नहीं है। And thank you very much, all people, for taking your time and attending this session. See you tomorrow. Good night.